the small kids here performing so excellent. The credit goes to the institution first, the principal and all staff members of his school who have guided and directed and prepared the students for this cultural event, annual program. I am immensely impressed to see the students how they are performing with flawless. I am grateful to Sri M.M. Tripathi ji, the HR President Chairman of this prestigious cement factory, the Honorable Manish Singh ji, other senior officers, and not the least, I must not forget Devendra Mishra ji, who along with the respectable Tripathi ji invited me to attend this cultural program in the premises of this factory. So thank you very much for inviting me. I am very much impressed with the Bharati Vidya Bhavan, this CBSE school, and the performance, the excellent performance given by the small students of from first standard to higher standard, and the way that this program was being conducted by two students, that is also super. I must say the school is gradually progressing in a proper direction, in the right direction. The country needs such type of educational system where the students can be groomed in a proper and right atmosphere. I must congratulate all the parents of these students who have come here and witnessing this cultural program of their kids. Definitely the management, the school administration, the principal Mr. Goswami and his colleagues are making their best effort to cultivate the sense of Indian culture. The Indian heritage was depicted here by the students. I am highly impressed and wish that this school should grow. Not only it should come in the merit, the students have come in the merit which I have seen, the result of this school, but they must come with the flying colors in the dynamism of this country. This country requires a good leadership. We require good students, good youth who can build this nation. And for that reason, the Bhuvan school, which is situated here in a remote area, like in this Mankahari, I also belong to a remote area. I belong to a village, Bhatia, which is a neighboring village of this Mankahari. I must say that the entire region, this segments of this vicinity is being developed by the management of cement industry, Prince Cement, and they are catering the need of villagers, the development which is required in this region, in the area periphery of this factory, around 20-25 kilometers. The all credit goes to the management of Prism Cement, who are taking so many troubles by formulating the CSR scheme to develop and cultivate the facility in the vicinity of the village, in the remote villages. They are doing their best, and this devotion shows
that the Prince Cement is a topmost cement factory, not only in this region, but entire country, because the development culture and the different developmental activities which were carried out in the past by the Prince Cement in the development of the entire district. I have seen the afforestation scheme, the tree guard which were placed in the Satna, in the vicinity of Satna. It shows the concern of the factory, and it shows how much concern is being taken by the management of this cement factory. So the credit goes to all the top dignitaries who are present here, and I am talking about the services of Tripathi ji and Manish Singh ji particularly, because they are the devoted officials of this factory, and they are concerned about the all-round development of this region. मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ इसी के साथ ही, चूँकि I am concerned with the new education policy. I am one of the member of the new education policy of the core group of the Madhya Pradesh. The CBSE has also modified its curriculum, and of course I have talked a little while ago with the principal that the management committee has also decided to modify the curriculum, and it shows it has reflected in the different programs depicted and presented by the students, that the students are going in the right direction. But what we require the all-round development of the students in such a way that the students who have aptitude about particular things, that should be cultivated in a proper direction. It is the duty of the teachers, it is the duty of the principal, that they have to study the psychological phenomena of the students, and they must regularly see how the students are requiring different aptitude, and they require skill, because the era is skill oriented. Skilling is also required right from the beginning of schooling. If the students are trained and if they have developed interest in different skills as per their interest, it will definitely cultivate and develop employability. It will develop the sense of responsibility among the students. So thank you very much for inviting me in this cultural program. I am also grateful of all the audience who have presented here, who have come here and witnessing the performance of their kids, the students of this school. It is a great opportunity for me, at least, that I have been invited by Dr. M.M. Tripathi sir and Devendra Mishra ji, who was a student sometimes, he was a student of our college also sometimes in late 80s. So I am grateful to these two authorities here that they have given me an opportunity to visit this factory and to visit this school, and given this opportunity to witness this wonderful and colored program of this school. Thank you very much. If the school requires any type of assistance of the university, AKS University, and particularly mine, I would be ready to help and guide to the student, because I have plenty of experience of educational system. Thank you very much. Kunal Varshika to take charge of the podium and continue this glorious event for being such an incredible host. Now, it's our turn to get the flow of the program ongoing. I, Kunal Varshika, and I, Prabhas Singh, welcome you all on behalf of our family. We are truly blessed with your presence. में संत है, स्वरूप कैसे जाने उनका, जिनका आदि है न अंत है। एकमात्र वही उठता है मेरे भोले के डमरू की ताल पे, परमार्थ का भाव लाओ
करुणा से भर जाओगे, आदि से अंत तक शिव को ही पाओगे। For Lord Shiva. We just need one commitment from you, that you will cheer up with applause. Jata that eliminates all negative energies. The hymn includes 15 verses, and each verse describes the fearless Shiva and his eternal beauty in great detail.
संहारकारी रुद्र रूप है। आपके उन सब ही रूपों को मेरा नमस्कार। You all must be knowing that Lord Shiva's brightest and the most illuminated form is known as a Ghori. A Ghori means someone who defies darkness and takes you to a bright light of clear as well. Good day, the students of class 7. अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिलके सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले। बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बम। मुझ पे चढ़ा है बस भोले का रंग, हर पल में हर क्षण में है भोले मेरे संग। लेके तेरा नाम भक्ति में तेरी ही रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के शक्ति में तेरी जी रहा हूँ। बम 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 बोले बोले। विशेष श्रृंखला की अनूठी कड़ी है जो दर्शक दीर्घा की अभिलाषा पर खरी उतरेगी, ऐसी हमें आशा है। मैं अक्षिता श्रीवास्तव सूत्रधार हूँ। अद्भुत महादेव अद्भुत भक्त की रचना निर्माता एवं अर्धांगना हमारी शिक्षिका डॉक्टर प्राची खरे की अनुभूति एवं कल्पनाशीलता की अभिव्यक्ति है। बच्चों में नैतिकता एवं आत्मबोध सिर्फ माँ ही करा सकती है, जब माँ ने बच्चों में संस्कारों के बीज बचपन से बोए हो। माता, पिता, शिक्षक एवं परिवेश बच्चों के मानस पटल पर एक छाप छोड़ता है, जो बच्चे की व्यक्तित्व का सफल निर्माण करता है। चलिए पेश है प्रहसन। तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी गोलू, ऐसा मत बोलो माँ। गोलू बेटा, झूठ, छल, ढोंग, प्रपंच, बेईमानी से हमेशा दूर रहना गोलू। हाँ माँ,
तेरे भाई की तो मत मारी गई थी जो उसे प्यार आया। माँ ऐसा क्यों बोलती हो माँ? ऐसा मत बोलो। बेटा, फिर भी भाई को पिता के समान समझना और भाभी को माँ के समान समझना। हाँ माँ। प्यार से जीता जा सकता है गोलू। हाँ माँ। बेटा गोलू, मुझसे वादा करो तुम अपना ख्याल रखोगे गोलू, ख्याल रखोगे गोलू, अपने भाई का भी ख्याल रखोगे। हाँ माँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं हम सब का ख्याल रखूंगा। माँ, माँ तुझे क्या हो गया? माँ, माँ कुछ तो बोल माँ। माँ तुझे क्या हो गया? माँ कुछ तो बोल माँ। भाभी मुझे खाना दो, थोड़ा ज्यादा देना। हाँ ले खा। दिन भर है माँ, ये लड़का 20-20 रोटी गटकत है। यखत पेट है कि कुआं? अब तो महिन पंचे बतावा को इतना खात है का? भाभी भाभी मैं जा रहा खेलने। हजार डर अरे क्या हुआ? देख लिया, यखत महतारी तक चली गए, अया पेटू का मोरे मुड़े पटक गए। यही का है, बस दिन भर खाए खे। इतनी गर्मी में चुलबा मतलब मैं सड़त हो ना। अरे छोटा सा प्यारा सा भाई है मेरा, तुम्हारे बेटे के समान है, क्यों बोलती हो उस बेचारे को? तुम्हारे प्यारा भाई 7 जन में बराबर गटकत है, पेटू वही का। रुका आए दिया ही आज सगरी कसर निकालत हो यखर। अरे छोड़ो भी, हो गया। सब्जी देना। रसीली सब्जी चाहिए तो ही रुक आज से। भाभी भाभी और मत खाइए मारो। रसीली सब्जी। पूरा कहेगा। हटो, क्यों मारती हो इस बेचारे को? कितना बोला है बेचारा। बस बस बहुत होएगा। अब यह घर में या तो यह नहीं या तो मैं नहीं हूँ, चुन लिया को एक का। मेरी तो मत्ती मारी गई थी जब तुमसे शादी की, अब पछतावा आ रहा है माँ की बात सुन के। गंवार कहीं की। तब मैं कह रहे हूँ ब्याह लाया वही है घर में, ब्याह लाया अपना पेटू भाई का मोरे मुड़े में पट्टे की नीता। तुम बड़े सीधा है जलाओ। हालत तो देखो बेचारे की, कितनी बुरी तरह से मारा है तुमने उसे। आजा बोलू, मैं तेरे को हल्दी लगा देता हूँ। नहीं भैया रहने दो, मैं अब आप दोनों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। माँ ने जैसा कहा था मैं वैसा करूँगा। मैं खुद का कमाऊंगा और खुद का खाऊंगा। अरे बोलू, कहाँ जाएगा तू इस कच्ची उम्र में? कैसे ख्याल रखेगा तू अपना? भैया मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं खुद का ख्याल रख सकूं। भाभी भैया मैं जा रहा, मुझे रोकना नहीं। अरे बोलू मत जा छोड़कर। अरे तुम दोनों भाई जाने हया मोर देख लिहा। अब इन साल तक तुम्हार गोलू 20-20 रोटी गट्टे का फेर प्रकट हो ही जाए। मैं तो तुम्हारे तेरे से तंग आ चुका हूँ। बस बस बहुत ड्रामा होएगा, जा जा अपन काम करा। हाँ मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी है। चिंटू मेरे दोस्त। क्या हुआ तुझे? तू क्यों रो रहा है? चिंटू मुझे मेरी भाभी ने बहुत मारा। भाभी ने मारा? क्यों? मैंने भाभी से खाना मांगा था, उसके बदले भाभी ने मुझे बहुत मारा। खाना मांगने के लिए कोई मारता भी है? भाभी है कसाई। सुनो मेरे दोस्त, मुझे कोई ऐसी जगह ले चलो जहां मैं खुद का कमा के खा सकूं। मैं भैया और भाभी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं वापस वहां नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, पहले अंदर तो आ। क्या हुआ चिंटू? पापा देखो, मेरे दोस्त को इसकी भाभी ने मारा और इसे घर से निकाल दिया। अच्छा तो ये बात है। मेरे पास एक उपाय है, तुम इसे तारा देव के आश्रम में टिकाओ, मैं फोन पर बात कर लूंगा। ठीक है पापा। अच्छा चिंटू, वैसे ये तारण देव है कौन? तारण देव एक गुरुजी हैं जिनका एक आश्रम है जिसका नाम बाल कल्याण आश्रम है, और उसके पीछे के गेट पर लिखा है भजन के बदले भोजन। चल मैं तुझे ले चलता हूँ। अच्छा आश्रम है? हाँ दिखाई दे रहा है हमें, अंधे नहीं है हम। हट, हमें जाने दे। मुझे नहीं पहचाना क्या? नहीं, कौन है तू? लगता है नया है यहाँ, जान जाएगा मुझे।
अपनी इच्छा से आए हो? जी मैं अपनी इच्छा से ही आया हूँ। पढ़े लिखे हो? हाँ पढ़े लिखे हैं तो लिखे इसमें। हाँ लिखता हूँ। चल हट, घंटा लोग यहाँ भी घंटियाँ बजने लगी। अरे ना जाने कहाँ से आ जाते हैं लोग। गुरुजी प्रणाम। आओ बच्चा आओ, आज का दिन तो बहुत ही शुभ है। ये कौन है? गुरुजी ये मेरा दोस्त है, बेचारा अनाथ है। इसकी भाभी ने इसे मारा और घर से निकाल दिया। इसे अपनी शरण में ले गुरुजी। इधर आओ बेटा। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? गुरुजी मुझे मेरी भाभी ने बहुत मारा और घर से भी निकाल दिया। मुझे अपनी शरण में ले ले। फिक्र मत करो, इसे आश्रम के सारे नियम बता दिए। हाँ सब बता दिया है। आगे पीछे दिखा दिया। हाँ सब दिखा दिया है। भजन के बदले भोजन। हाँ देखो बेटा, 6 से 9 भजन, 9 से 12 भोजन, 12 से 3 आराम, 3 से 6 भजन और 6 से 9 भोजन। बिल्कुल फिल्मी शो है, समझ गए? जी गुरुजी। देखो बेटा, 3 घंटे माइक पर भजन बोलना पड़ेगा। मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं, लोगों के लिए, जहाँ से मुद्रा आती है। समझ गए? जी गुरुजी। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है चिंटू। और चिंटू बेटा, पिताजी कैसे हैं? एकदम चकाचक, बस आपकी कृपा है। उन्हें बोलना कि हमसे थोड़ा बात करें, हमें एक आश्रम खुलवाना। गुरुजी की जय हो। खुश रहो और ऐसे ही दोस्त अपने लाते रहना। जी गुरुजी, अब मैं चलता हूँ। इधर आओ बोलो बेटा। जी गुरुजी कहिए। श्लोक भजोगे या मंत्र? गुरुजी छोटा दीजिएगा। छोटा सा। ओम नमो भगवते। नहीं गुरुजी ये बहुत बड़ा है, और छोटा। और छोटा? अच्छा गुरुजी ओम नमः शिवाय चलेगा? ठीक है, ओम नमः शिवाय सही, लेकिन हाँ 3 घंटे माइक पर बोलना पड़ेगा, उसी के बाद खाना मिलेगा। जी गुरुजी। समझ गए? जी गुरुजी। जाओ अब। हर हर भोले नमः शिवाय। आजा गोलू आजा, थक गया होगा। गुरुजी भोजन। जाओ खाने की सामग्री ले लो। गुरु माँ भोजन। लो बेटा सामग्री ले लो। अरे रुक, भोग लगाना जानता है? नहीं गुरुजी। सुनो, इसे भोग लगाना भी सिखाओ। जी गुरुजी। देखो बेटा भोग ऐसे लगाना है। मेरे राम आए, मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। समझ गया? जी गुरुजी मैं समझ गया। जाओ। राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, हे प्रभु, चलिए भक्त आपको पुकार रहा है। नहीं प्रभु, आप जाइए, ये संसार राम का है। चलिए प्रभु चलिए। नहीं प्रभु, आप जाइए। प्रभु मैं बड़ी दुविधा में हूँ, बड़ा विचित्र भक्त है। जाप आपका करता है और भोजन पर मुझे पुकारता है। जाइए प्रभु, भक्त बहुत भोला है, आप भोग लगाइए, मैं तृप्त हो जाऊंगा। शिव राम में है, राम शिव में है। मैं तो डर ही गया था। लीजिए प्रभु आसन ग्रहण कीजिए। लेकिन मैंने तो सुना था कि भगवान सिर्फ भोग को देखते हैं और चले जाते हैं, खाते नहीं हैं। आप खाएंगे क्या? हाँ वत्स, मैं खाऊंगा। इतना सा तो भोजन है, मेरे लिए क्या बचेगा? चलिए कोई बात नहीं, ये लीजिए प्रभु भोग लगाइए। ये क्या, इतना सा भोजन बचा है। चलो कोई बात नहीं, भाभी की मार से तो अच्छा ही है। आजा गोलू आजा, 3 घंटे हो गए। गुरुजी भोजन। जा खाने की सामग्री ले ले। गुरु माँ भोजन। गुरु माँ इस बार 2 लोगों का भोजन दीजिएगा। पिछली बार प्रभु श्री राम भी आ गए थे और मेरे लिए इतना सा भोजन बचा था। क्या राम आए थे? गुरुजी ये क्या कह रहा है? अरे क्या हो गया? कह रहा है कि राम आए थे। अरे वो झूठ बोल रहा है, वो पेटू है, दे दो उसको। जी गुरुजी। लो बेटा सामग्री ले लो। अरे रुक, भोग लगाना याद है?
नहीं गुरुजी, मैं भूल गया। सुनो, इसे भोग लगाना सिखाओ फिर से। जी गुरुजी। देखो बेटा, भोग ऐसे लगाना है। मेरे राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे को क्या भला होगा? कोई बात नहीं वत्स, हम साथ में मिलकर खा लेंगे। मेरे लिए क्या बचेगा? ठीक है प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। ये लीजिए प्रभु, भोग लगाइए। ये क्या, फिर से कई भोजन बचा है। चलो कोई बात नहीं। नमः शिवाय, हर हर भोल, नमः शिवाय। दोनों आ गए थे, मेरे लिए भोजन बचा ही नहीं था। क्या गुरुजी, गुरुजी ये क्या कह रहा है? अरे क्या हुआ? कह रहा है कि राम आए थे और माता सीता को भी लेकर आए थे। अरे वो झूठ बोल रहा है, वो खाने के लिए ये सब करता है। दे दो उसको। जी गुरुजी। लो बेटा, सामग्री ले जाओ। खाएंगे, साथ में मैं भी खाऊंगा। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये क्या प्रभु, आप तो पूरी बारात लेकर आ गए। लक्ष्मण जी, सीता मैया, प्रभु श्री राम और एक बंदर। ऐसा भी कोई करता है क्या प्रभु? मैं तो डर ही गया था, लेकिन मैंने तो आज भोजन बनाया ही नहीं। लाओ गोलू बेटा, भोजन मैं बना देती हूँ। भैया आप कहाँ ले आते हैं? पहले माता शबरी के यहाँ ले गए झूठे वेद खिलाने, आज यहाँ भोजन भी नहीं बना है, माता सीता को भोजन बनाना पड़ रहा है। क्रोधित ना हो लक्ष्मण, भक्त का भाव देखो, भक्त बहुत भोला है। मैं भी देखता हूँ ना आज भोजन कैसे बनाते हैं। मैं जब भोजन बनाता था तो रोज एक आदमी बढ़ा देते थे, अब देखता हूँ इतनी गर्मी में कैसे भोजन बनाते हैं। आहा, क्या खुशबू है। माता सीता, इतना स्वादिष्ट भोजन। आपने तो मुझे मेरी माँ की याद दिला दी, बिल्कुल उनके जैसा भोजन बना है। आप धन्य हैं सीता मैया। प्रभु आसन ग्रहण कीजिए। गोलू, किससे बात कर रहा है? गुरुजी देखिए, भगवान साक्षात हमारे आश्रम में आए हैं। झूठ मत बोल मुझसे, हर दिन का तेरा ये नाटक हो गया है। नहीं गुरुजी, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। देखिए, लक्ष्मण जी, सीता मैया, प्रभु श्री राम और एक बंदर। मूर्ख बनाने की कोशिश मत कर मुझे, आश्रम के बाहर निकाल के दूंगा तुझे। गुरुजी ऐसा मत कहिए। प्रभु इन्हें दर्शन दो प्रभु, वरना ये मुझे आश्रम के बाहर निकाल फेंकेंगे, मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे गुरु की तरह ढोंगी, पाखंडी और छल प्रपंची लोगों को दर्शन नहीं देता। गुरुजी मेरी बात का विश्वास कीजिए। झूठ मत बोल मुझसे, निकल जाए यहाँ से। गुरुजी ऐसा मत कहिए। जय श्री राम। प्रभु भोला है, बच्चा है, अनाथ है, निश्चल है, कर्तव्यनिष्ठ है। प्रभु बालक का सहारा न छीनिए। प्रभु इसकी भक्ति तो देखिए, बहुत सरल है। प्रभु गुरु घंटाल को दर्शन दीजिए। तारण देव इसको पाकर तर गए। प्रभु दर्शन दे, इसके गुरु को दर्शन दे। माता के अंतिम वचन एवं गुरु भक्ति का प्रमाण दिया है, जैसा कहा वैसा माना। प्रभु इसकी कर्तव्य निष्ठा एवं आज्ञा प्रबंधन की शैली अनुपम है, अनुपम है। माता पिता को प्रभु के माने, विनय विचार करेश जाने। प्रभु दर्शन दे। जय श्री राम। अरे अरे, इतनी देर से रोशनी कहाँ से आ रही है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? प्रभु प्रभु प्रभु, जय हो प्रभु, मैं धन्य हो गया आपका दर्शन पाकर। प्रभु जय हो प्रभु। अरे देखो, स्वयं श्री राम आए हमारे आश्रम में। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। गुरुजी लगता है आप पागल हो गए। अरे कैसी बात कर रही हो, स्वयं भगवान खड़े हैं हमारे आश्रम में। गोलू गोलू उठ बेटा। जी गुरुजी बोलिए। मुझे माफ कर दे गोलू, मैं तो मुझे माफ कर दे। देख, स्वयं भगवान हमारे आश्रम में खड़े हैं, तू सच कहता था।
गुरुजी, मैं तो आपको रोज कहता था कि भगवान आते हैं, लेकिन आप ही मेरी बात नहीं मानते थे, मुझे कम भोजन देते थे। मुझे माफ कर दे गोलू, तू तो सच कहता था गोलू। गोलू गुरुजी, 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 क्या हो गया आपको? गुरुजी, कुछ तो कहिए। अगर आप नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा? मैं भूखा मर जाऊंगा। गोलू, मुझे माफ कर दे, मैं तो ये सब पैसों के लिए करता था, लेकिन तेरी सच्ची भक्ति देखकर स्वयं भगवान हमारे आश्रम में आए हैं। मुझे माफ कर दे गोलू। गोलू, मुझे माफ कर दे। गुरुजी, कुछ तो बोलिए गुरुजी। समर्पण, कर्तव्यनिष्ठता एवं माता के संस्कार जिस व्यक्ति पे आ जाते हैं, ईश्वर उसके साथ सदैव निवास करते हैं। Of Shiva, meaning dancing in an absolute bliss. Of male and female energies of the cosmos, Purusha and Prakriti. Ardhanarishwar signifies that totality lies beyond duality. वो अपने जीवन काल में एक बार शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे।
इसी इच्छा को मन में लिए वो हिमालय की ओर चल पड़े, जहाँ शिव जी अपनी भार्या सती के साथ जीवन व्यापन करते थे। हे महादेव, मैं आपकी परिक्रमा करने की अनुमति चाहता हूँ। अवश्य। आपने मेरी ही परिक्रमा क्यों, पार्वती जी की परिक्रमा क्यों नहीं की? हे महादेव, इस संपूर्ण संसार में मैं केवल आपकी ही आराधना करता हूँ। आप ही मेरे एकमात्र आराध्य हैं। मेरी दृष्टि में एक नारी कदापि आपकी बराबरी नहीं कर सकती। भृगु ऋषि द्वारा सती के इस अपमान से महादेव बहुत नाराज हुए और सती को अपने अर्धांग में स्थान दिया।
तिलक तेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, सुब्रह्मण्य हे महेश्वरा। आउट ऑफ स्टेशन है, संध्यापन निशित त्रिपाठी को सीबीएसई वेस्ट जोन है, स्टेट लेवल जोन। अब हम बोला और यहाँ अनुप्रीत 10 and 12 सुपुत्री पार्वती आज भी शिव है इनके एकमात्र आराध्य, वर के रूप में मिले जो फिर शिव, तब का हो सौभाग्य। आदि न जिसका अंत न कोई, वो शिव है महाकाल, नतमस्तक हो जाते इनके आगे तीनों काल। महादेव से छिपा रहा सृष्टि का कोई रहस्य, पार्वती के रूप में उनको दिखा सती का सत्य। हर्षाता इस धरा गगन का एक एक कण है, महादेव का पार्वती से होने वाला मिलन है।
चाहे वो राजा हो या हो भूत पिशाच देवगण, एक दूसरे की हलचल भी इन्हें एक आंख न भाती। पर शिव पार्वती के विवाह में सारे थे एक दूसरे के साथी। जिसकी वो है तप और त्याग। महाकाल का मूल मंत्र है एक, राग और बैराग का है। वर और वधू का हो गुणगान, माता पिता और वंश वृक्ष का हो सर्वसा बखान। पार्वती के पिता ने उनका किया था ऐसा वर्णन, समारोह में मोह लिया हर एक अतिथि का मन। फिर वो बढ़े शिव जी की ओर, अब थी उनकी बारी, पर शिव जी ने धारण किया मौन। सभा शांत हो गई सारी। क्या इन्हें अपने गुरु का पता नहीं? माता पिता कहाँ खो गए? कैसे ब्याहूं मैं अपनी बेटी? सवाल कई खड़े हो गए। वहीं खड़े नारद जी ने फिर ऐसा अलग जगाया, हर एक प्रश्न के उत्तर में सबको बस ये समझाया। गोत्र न कोई शिव जी का है, ना कुल ना परिवार, अपने सत्य से हुए स्वयं हुए साकार। यही सृष्टि के कारण है, शिव एकमात्र है अनंत, यही सकल है यही चराचर, इनका आदि ना अंत। नवरस के भी माता पिता है, हर हर महादेव। चित अर्धनारीश्वर का है, शांति रस का रूप। जटाओं में खिलखिलाती गंगा है हास्य रस का आधार। देव जिन्हें पूजे वो महादेव है, वीर रस साक्षात। माथे पे चमकता चांद है, अद्भुत रस का संसार।
सबसे बड़ा भयंकर रस। जब आलिंगन में बैठी देवी पार्वती, रस फूटा श्रृंगार। करुणा रस का भेंट दिया जब, विष पीकर कहलाई नीलकंठ। चीता भस्म जब देह पे आया, जन्मा विभत्स रस। तीसरी आग से करे विनाश, ऐसा है रौद्र रस का आघात। Great honor and privilege to stand before you to propose the vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this annual day celebration happen. I, on behalf of Bharti Vidya Bhavan's Prison School and the entire fraternity of the institution, first of all, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. On behalf of my school, I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, Dr. Harshvardhan Srivastava, Pro Vice Chancellor of AKS University, Satna, who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. Thank you, sir, for kindly accepting our invitation and presiding over Sanskriti of Bharti Vidya Bhavan's Prison School today, along with your family. Thank you, ma'am, for being with us. I take immense pleasure in thanking our school chairman, Shri M.P. Tripathi, sir, who genuinely cares and refines the gifts and talents of the young ones. Thank you, sir. I take this opportunity to thank Shri Manish Kumar Singh, sir, for being the driving force behind all our worthy pursuits. Thank you, sir. A special mention to our respected principal, Dr. Ramanand Goswami, sir, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength. Thank you, sir. I'm extremely thankful to all the dignitaries, special invitees, friends, and well-wishers for your silent witness and a sense of appreciation. I also extend thanks to all the staff members for their enormous cooperation within the organization for this gala event. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of
very proactive and dedicated staff of our institution who are well versed in their job. I'm short of words for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. We are especially indebted to our music teacher, Shri P.M. Deshmukh sir, and dance teacher, Srimati Kala Tripathi ma'am, whose sincere efforts and dedication has made this program a successful one. I would also like to thank the people who work behind the scene to make this event happen. Our technical arrangement team, stage setting and lighting arrangement team, administration department of Prism Johnson Limited, all the musicians and housekeeping staff. Our sincere gratitude goes to all parents and well-wishers for your rock-solid support system and encouragement. Without your support, children were not been able to achieve excellence. Thank you so much for attending this event. Finally, I would like to thank our budding rock stars that made this event joyful with their impressive performances. Your days of hard work were evident in your acts. All the programs were very good and very enjoyed by each one of us present here. On behalf of the entire institution, once again, I thank you all from the core of my heart. Thank you. प्रकाशित करना यानी देव पूजन से प्राप्त होने वाली सकारात्मक शक्ति हमारे मन को प्रकाशित कर हमारे व्यक्तित्व को उज्जवल करते हैं। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। Thank you.
our world. Thank you once again to everyone who contributed to the success of this annual day celebration. Wishing you all a good night.